Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Apeksha ma'am, do we need to wait for more students to join? Ma'am, we can start, they'll join. Okay. Fine. So this is a demonstration class basically, and I am going to basically discuss that in this particular subject, which is Microsoft Office is a subject which I am going to conduct with the first year students. And these are the topics which I'm going to cover most probably in the lectures with all the students of the first semester. So MS Office includes several, you can say, topics or the parts basically, which is first is MS Word, then it is MS Excel, then Microsoft PowerPoint, and to a certain extent we would also like to cover MS Outlook, wherein we would be covering the mails and all those things, the details about mails. So today, starting with MS Excel, I'm going to share my screen with you guys so that we can see how exactly the MS Excel works. I'm going to share the content with the real-time thing so that we know that how actually the formula and all those things are going to be working in MS Excel. So MS Excel basically is one of the, you can say, part of MS Office. Sorry. Okay, so if anybody wants to speak anything, I have actually, please raise your hand and I will unmute you and then you can speak up. I have changed the security settings of the meeting wherein you guys cannot unmute yourself until I allow you guys. Is that okay? If there is anything anybody wants to share or ask any question or something, you can use chat box for now and I will take your query. I would expect no annotation the way people are doing it. Although I have disabled this also, you won't be able to use the annotation for now. Please do not spoil the screen this way, the way things are going on. Okay, so covering MS Excel. MS Excel basically is a software, you can say, which we use in order to maintain the data. Data in a tabular form, very bulky data. It can be in total, I would just be able to show you that how many in total we have got the rows. You can see it is 1048576, the extreme left. The number of rows we have would be this, which is more than 10 lakhs, I would say. Yes, more than 10 lakhs of the rows we have. So more than 10 lakhs rows we can use in order to maintain the data in the Excel. About it can be maybe the number of people, it can be number of employees, it can be number of students, the way we want to show. The vertical things are rows and the horizontal things in the Excel are the columns basically. So the last column in the MS Excel would be XFD, the extreme, this particular thing, the extreme above right, you can see XFD. So this is the way how the columns are being shown here. So this is the way I'm coming back again to this particular thing, serial number. If I'll put my cursor in this particular box, serial number, the box in which I have mentioned serial number, if you can see, I'm highlighting this box also, then this box particularly is B4.
B4 is mentioned here. B4. So B is basically the column. 4 is basically the row. Wherever you would put your cursor in any column, in any row, in any box in the Excel, it will show you whatever it is its number. Like for now, it is showing here in the left top box D1048554. So Excel basically is a software which in a very easy manner we would be able to maintain the huge database in the one sheet itself. In the one sheet itself, whatever number of columns we would want to add or use, we can use it. Otherwise, the rest of the columns and the rows will remain blank. Whatever database we have, we would be able to use only those number of columns and rows. For example, if I take the example of this particular Excel, here in this Excel, particular first column, you would see column A is left blank by me. I'm not using this A column. And from B, we have got I have started this table from column B and row B4. So this particular row is being used as the heading of whatever we are going to use the content in the Excel in the tabular form, in the table basically. So generally the rows and columns are also used as the table in the Excel generally, but MS Excel has got you can say very vast. It is very vast software and got several options which we can cover. And in generally, Arush, what is your question? Satyam, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको बेटा? Could you please unmute yourself, Satyam, and let me know that what exactly is the software we're talking about? Satyam, please come back. Unmute yourself. Hello. हाँ जी, बताइए please, which software we are discussing for now? मैम ये ऑफिस का है मैम. हाँ, ऑफिस का ये कौन सा पार्ट है? MS ऑफिस है वो. MS stands for what? MS ऑफिस क्या है? MS मैम मैनेजमेंट. Microsoft. MS ऑफिस is Microsoft. ओके मैम, बस इंग्लिश की प्रॉब्लम आ रही है. I'm really sorry. मुझे बता दीजिए if I have to use, मुझे अगर इंग्लिश में completely lecture इंग्लिश में लेना है, राज, you can unmute yourself and please speak up. जी बताइए. मैं हिंदी में भी बात करती हूँ. I'll use both the languages. English and हिंदी में मैं mix करके use करती हूँ. राज, आपने hand raise किया है, please बताइए. You can unmute yourself, I think. I have allowed you to unmute yourself. Raj, can we can I hear you? Can you unmute yourself? You can use chat box also in any case if you have any trouble, any problem. Raj, I'm waiting for you to unmute yourself. हाँ जी राज, प्लीज बताइए. Please lower your hand in any case if you have no questions. Arush, the topic is Microsoft Excel. We are discussing today about Microsoft Excel. Microsoft Excel is the part of Microsoft Office. This is one of the softwares which we are going to use. Microsoft Office एक बहुत बड़ा software है. उसके अंदर different हमारे सब softwares you can say हैं जो हम use करते हैं. राज, I would request you, आप please अपना hand down कर लीजिए अगर आपको कोई question नहीं है तो. हाँ जी आरुष, if you know that we are learning Excel, तो फिर आपको क्या what topic is MS Excel only बेटा. Topic is MS Excel only.
We're discussing about MS Excel, and we're discussing today about the rows and the columns of the MS Excel. We also might, excuse me for a minute, just a minute. Okay, so if somebody has got any question or anything, please raise your hand, and I'll then you can unmute yourself and please speak up in front of everyone, whatever the question you have. So Arush, I think I am clear with the topic. You're clear with the topic? बोलिए सत्यम. हेलो हाँ जी. मैम, कॉलेज कब से ओपन होंगे हमारे? ये आप प्लीज अपने एचओडी से पूछिएगा, कॉलेज कब से ओपन होंगे. रेगुलर मैम क्लासेस हमें हमारी तो कल कुछ भी से, नहीं पता, पहली क्लास आपकी है। रेगुलर क्लास हमारी जो है वो कल से स्टार्ट होंगी. ऑनलाइन क्लासेस ही हमारी स्टार्ट होंगी. सो कॉलेज ऑफलाइन जो है अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है. जैसे ही हमें मैम गवर्नमेंट से बाकी कोई, कॉलेज तो खुल गए हैं। हमारे कॉलेज को जैसे ही कोई भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगी तो हम लोग कॉलेज ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे. मैम बाकियों की को कैसे मिल गई गाइडलाइन? बाकियों का, बाकी कॉलेज का सॉरी, आई एम नॉट आंसरेबल अबाउट द अदर कॉलेजेस. आई एम ओनली आंसरेबल फॉर एशलॉन. तो मैम अभी कोई आइडिया नहीं, इस साल चलेंगी नहीं चलेंगी मैम? ऑफलाइन क्लासेस का सत्यम कोई अभी आइडिया नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमारी तरफ से नहीं है. एज एंड व्हेन मैम वी विल क्योंकि रिसीव दी, 12th में तो हमने सरवाइव कर लिया, एग्जाम नहीं हुए हैं मैम, क्लियर हो गया। अब हाँ, इंजीनियरिंग का टेंशन हो रही है। इंजीनियरिंग के 1.5 ईयर लास्ट भी इस तरह से निकला है कोविड की वजह से. बट वी विल ट्राई कि एज सुन एज गवर्नमेंट विल गिव अस सम गाइडलाइंस, वी विल बी एबल टू स्टार्ट द ऑफलाइन कॉलेजेस आल्सो. हम भी चाह रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हम कर पाए, सो दैट इंटरेक्शन फैकल्टी का स्टूडेंट से बेटर हो और आप लोग भी क्लासेस ज्वाइन कर पाए और आप लोग भी इसको अच्छे से ले पाए. बट जब तक कुछ भी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऑर्डर्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक हमको सब कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ेगा. तो जिस तरह से अभी ये क्लास है, इसी तरह से आपको प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से आपको. ओके मैम. Satyam, was I able to answer your question? Is that okay? Anything else you would want to know? Anybody else, or should I proceed? Bolo Satyam. You can unmute again. नो मैम. Please lower your hand then. Okay, so we are basically discussing from the very basic. I've told you MS Excel is a software in which we are going to maintain. This is basically used worldwide to maintain the huge database. Huge database. When I say database, it can be related to anything. It can be related to maybe the number of employees who are working in an organization. Maybe a database can be including the data of the employees and their personal information, like their father's name, their date of birth, their date of joining, their date of leaving, their date of, or maybe their age, their experience, number of years of experience they have. Whatever kind of data we would want to maintain about anybody. It can be, if it is an organization, it can be about the number of employees also, या number of clients भी हो सकता है, number of customers हो सकता है, kind of customers हो सकता है, उनकी location कहाँ पर कौन सा customer किस जगह पे है, remarks का column हम डाल सकते हैं. We can insert the columns, we can insert the rows.
हमें लगता है कि जैसे सपोज ये नेम ऑफ द स्टूडेंट के ई कॉलम है, इसमें अगर इससे पहले हमें डी और ई के बीच में एक और न्यू कॉलम इंसर्ट करना है जो हम चाहते हैं कि यहाँ हो जाए, और हम उसको कुछ और नेम देना चाहते हैं या हेडिंग देना चाहते हैं, तो हम इस तरह से यहाँ पे माउस जो जब हम यूज करते हैं तो माउस में हमारे पास 2 क्लिक्स होते हैं, लेफ्ट क्लिक होता है और राइट क्लिक होता है। तो राइट क्लिक जनरली हमको बहुत सारे ऑप्शंस देता है करने के लिए। सो वी विल सिलेक्ट दैट ई रो और मे बी दैट एफ रो बाय क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर अल्फाबेट। जैसे कि H आपको दिख रहा है, F आपको दिख रहा है, D आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एंटायर नीचे तक का पूरा कॉलम हमारा ये सिलेक्ट हो चुका है। अब सिलेक्ट होने के बाद वी विल राइट क्लिक फ्रॉम आवर माउस एंड इट विल गिव अस दीज ऑप्शंस। कट का ऑप्शन हमें दे रहा है, कॉपी का ऑप्शन हमें दे रहा है। कट के ऑप्शन से होता है कि ये पर्टिकुलरली कट हो जाएगी रो। कट का मतलब यहां से कट करके अब हम इसको कहीं और इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे नेम ऑफ द स्टूडेंट जो है वो डी से पहले लेके आना है। सो आई कैन अगेन आफ्टर कटिंग इट आई विल अगेन जस्ट पुट द राइट क्लिक एंड आई कैन इंसर्ट द कट सेल। तो वो यहाँ की जगह इधर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द राइट क्लिक ऑफ द माउस। अगर हमको इस चीज को अनडू करना है तो वी कैन यूज कंट्रोल Z एंड इट विल अगेन बी एट इट्स अर्लियर लोकेशन जहां पे था। कंट्रोल Z इज फॉर द अनडू। सिंपल अगर आपको इस पूरे डेटाबेस को कॉपी करना है और एक न्यू एक्सेल में हमें पेस्ट करना है, हम इसका एक बैकअप भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मास्टर डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं और मैं चाहती हूँ कि इसमें कोई चेंज ना हो, ये एज इट इज रहे, और जो चेंजेस मुझे करने हैं वो मैं एक न्यू रिपोर्ट बना लूं। तो मैं इस तरह से इसको कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर सकती हूँ। कंट्रोल A विल गिव अस एक जो ये इसमें बेसिकली शॉर्टकट्स या ये शॉर्ट कमांड्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत इजी है, टाइम सेविंग भी है, और अगर हम ये चीजें लर्न कर लें तो ये एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल है कि हम अपना रिपोर्ट या डेटाबेस जो भी हम MS एक्सेल को यूज करके प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे से completely we can use it and we can make it in a lesser time. We can make that. So control A से you have seen कि हमें पूरा selected दिख रहा है। control A, control is the key in our keyboard. कंट्रोल CTRL के नाम से होता है, और कंट्रोल के साथ अगर हम A प्रेस करेंगे तो ये आपको एकदम से सब कुछ सिलेक्टेड दिख रहा है। कैन यू सी दिस द कंप्लीट एरिया इज सिलेक्टेड। तो ये पूरा चीज अभी सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या एक्शन करना है, वी कैन सी अगेन देयर इज अ शॉर्टकट और शॉर्ट की फॉर कॉपिंग द एंटायर डेटाबेस। एंटायर डेटाबेस मतलब अगर ये पूरा डेटाबेस मैं कॉपी करना चाहती हूँ तो C फॉर कॉपी है। कंट्रोल के साथ अगर मैं C प्रेस करती हूँ तो आप ये देखिए इस तरह से अभी हाईलाइट हो गया, एंड दिस इज द एंटायर डेटा इज कॉपीड। एंटायर डेटा इज कॉपीड, कॉपी हो चुका है। अब अगर मुझे इसको कहीं और बैकअप में लेके कहीं इसका एक दूसरी जगह बैकअप लेना, तो मैं एक न्यू एक्सेल ओपन करके इस पर्टिकुलर डेटा को जो मैंने अभी पूरा कॉपी कर लिया इसको मैं कहीं और पेस्ट भी कर सकती हूँ। So this is again the shortcut to open any new Excel. Again there is a shortcut. एक long process है कि हम यहाँ से जाएंगे और हम एक open file करेंगे। यहाँ पे फाइल में गए, हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में आपने देखा फाइल एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। यू प्लीज सी द कर्सर आल्सो वेयर आई एम मूविंग द कर्सर। फाइल में हम जाएंगे और फाइल में जाके ओपन आएगा और ब्लैंक वर्कबुक आएगा। एक तो ऑप्शन ये है, दिस इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस कि मैं यहाँ पर जाऊं, फाइल में जाऊं, फिर ओपन में जाऊं, फिर ब्लैंक वर्कबुक करूं। ये जो भी है न्यू या ओपन अगर मुझे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यू फाइल करना चाहती हूँ तो फाइल के अंदर जाके जो ये न्यू ऑप्शन आ रहा है या फाइल के अंदर जाके जो ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इनके शॉर्टकट्स होते हैं कंट्रोल के साथ N प्रेस करना, N फॉर न्यू, कंट्रोल के साथ O प्रेस करना, O फॉर ओपन। तो ये सारे फॉर्मूले, देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज व्हिच वी हैव टू रिमेंबर एंड इट विल ओनली कम व्हाइल वी विल practice. Arush, your hand is still raised. Do you want to say something? You can unmute yourself. And in any case, if you don't, please lower your hand. And what is the use of Excel in engineering? See, anybody, whether the person is engineer or the person is with some other trade or with any other profile,
anytime whenever you will be serving your job in any corporate, you will have to maintain some or the other database. Maybe you will have to maintain the database of your client. Maybe you have to make some database for the requirements of maybe some respective client, a client से या 10 client से कि उनको क्या क्या चाहिए. Points to be noted. So this particular MS Office is the software which everybody would be using. It is as important as Windows. We are working in Windows. The next software we install is MS Office only. So we would want to give the overview, not the entire detail, because you will not be working only on MS Office. But ये part of your job रहेगा, तो थोड़ा बहुत आपको MS Office का skill जो है वो होना चाहिए. और just to maintain the database, MS Office is going to help the engineers also. You can maintain the database, although in a notepad as well. जो notepad soft copy में भी होता है या आप hard copy में maintain करते हो, but the way you can maintain the database in Excel, MS Excel, Microsoft Excel, इससे better database maintain करने के लिए software फिलहाल at this particular cost is not available in the market. So we would want to give the overview to everybody, to all our students, so that it is easier for them to now practice and be able to work. Because any corporate you go in, you will see that once you will step into the corporate, you will see that MS Excel is going to be very important part of your corporate life. So that is why we would really want you guys or everybody कि इसको हम use करना हमें आए और हम इसको कर सकें. अभी एज ए स्टूडेंट लाइफ में भी आप जो है वो ज्यादा यूज करें MS वर्ड, मे बी आप ज्यादा यूज करें पावर पॉइंट जनरली इज यूज फॉर द प्रेजेंटेशंस. अगर आप अपने क्लाइंट को कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, अपना कुछ प्रोजेक्ट जो आपने काम किया है, अब तक कर चुके हैं, या आपके अपकमिंग कुछ टारगेट्स हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, वो सारा हो सकता है आप पावर पॉइंट में यूज करें. इट डिपेंड्स कि आप किस चीज में क्या काम कराना चाहते हैं. MS ऑफिस जो है उसका जो ये पार्ट MS Excel जो अभी हमारी क्लास में चल रहा है, इट इज नॉट जस्ट फॉर द डेटाबेस ऑल्सो, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द कंपैरिजन. आप इसको चार्ट्स इंसर्ट करके डेटा को आप चार्ट्स के थ्रू भी दिखा सकते हो, पाई चार्ट्स यूज कर सकते हो, बार ग्राफ्स यूज कर सकते हो कि हमारा अगर आपको कोई सपोज कोई प्रीवियस ईयर्स के डेटा दिखाने हैं, सपोज कंपनी को अपना ही कोई डेटा दिखाना है, किसी क्लाइंट को प्रेजेंट करना है फॉर एग्जांपल, राइट. सो वी कैन शो कि ठीक है 2020 में हम वी वर हियर, या हमारा टर्नओवर ये था, या हमारी सेल्स ये थी, या हमारा प्रॉफिट ये था, एंड देन कंपेयरिंग इट विद नंबर ऑफ इयर्स, मे बी 5 years 10 years. We can show it with the help of diagrams also, with the help of charts also. Those all things are available in this particular software, which is easier to use and which is worldwide available. और आप देखेंगे कि जब आप कॉर्पोरेट में यू विल मूव इन, तो जैसे हम मेल्स के लिए जीमेल यूज करते हैं, अभी पर्सनल हमारी आईडी जनरली जीमेल पर होती हैं सभी की, या जो भी कोई हम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, कोई याहू यूज करता है, कोई रेडिफ मेल यूज करता है. But office generally corporate culture में Outlook is most pervasive, which is used. Again, MS Outlook is also part of MS Office जो हम ये particular subject अभी पढ़ रहे हैं. So Arush, was I able to answer your question? Is that okay? Did you get it? Please confirm so that we can proceed. Okay, so I was on this that I have completely copied this particular Excel. Now मुझे इसको suppose एक new worksheet, हम इसको worksheet बोलते हैं, जो ये MS Excel की एक sheet है particularly, इसको हम एक worksheet बोलते हैं. तो अगर मुझे इस particular data का backup लेना है, backup का मतलब जो ये वाली sheet है ये as it is रहे, और मैं इसके अंदर कुछ और काम करना चाहती हूँ, कुछ addition, कुछ deletion, कुछ इसकी और formatting, कुछ और sorting करना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा. अभी आप देख रहे हैं जैसे ये हेडिंग्स हैं, सीरियल नंबर, कॉलेज नंबर, यूनिवर्सिटी नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर नेम. इस पर्टिकुलर हेडिंग को आप देख रहे हैं, इट इज मोर ऑफ दी, इसमें जो कलर है वो ग्रीन कलर, इट इज फिल्ड, ग्रीन कलर इज फिल्ड, राइट. सो वी कैन वी व्हाई वी हैव यूज्ड दिस कलर एंड ऑल दैट. तो क्या मुझे एज इट इज उठाकर ये न्यू एक बैकअप न्यू कॉपी में मिल सकता है, या न्यू वर्कशीट में मिल सकता है? तो वर्कशीट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ न्यू पेज in the MS Excel only, or a new file. तो मैं उसके लिए शॉर्टकट क्या है, Control N for new अगर मैं करती हूँ, Control N मैंने किया. अब आप देखिए ये एक न्यू Excel ऑल टुगेदर क्रिएट हो गया है with the name book 1. इसको मैं चाहूँ तो सेव कर सकती हूँ,
सेव एज करके इट विल बी क्रिएटेड एज अ न्यू फाइल। ठीक है, अब जो मैंने वहां से डेटा कॉपी किया हुआ था, द अदर वन फ्रॉम हियर, ये जिस तरह से आपको दिख रहा है ये हाईलाइटेड डेटा, इट मींस कि ये या तो ये कॉपीड है या ये कट है। तो मैंने कॉपी किया हुआ डेटा है, मुझे बुक 1 में इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने का हमारे पास शॉर्टकट होता है या शॉर्ट की होता है कंट्रोल V। So if I'll paste it, if I'll press Control V, वो यहाँ पर न्यू एक तरह से फाइल मेरी बन गई है exactly the same। मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ तो मैं इसमें कोई भी चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये दोनों चीजें नहीं चाहिए, तो मैं ये दोनों चीजें C&D जो मेरा कॉलम है मैंने इसको इस तरह से हाईलाइट किया, C को भी इस तरह से करा, और अगर मुझे इसी के साथ दूसरा भी करना है, D भी करना है, तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके D को भी क्लिक करूंगी तो ये दोनों एक साथ प्रेस हो जाएंगे और दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। अब मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकती हूँ। क्लियर है, ये मुझे नहीं चाहिए न्यू फाइल में। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा सपोज मेरा क्लाइंट मुझे ऐसा बोलता है या मेरा बॉस मुझे ऐसा बोलता है, या अगर मैं एक फैकल्टी हूँ एक कॉलेज में, तो मुझे यहाँ पर मेरी मैनेजमेंट ऐसा बोलती है कि मुझे एक डेटाबेस इस तरह से क्रिएट करके आपको देना जिसमें मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं चाहिए, मुझे नेम ऑफ द स्टूडेंट चाहिए, मुझे उसका फादर नेम में भी नहीं चाहिए, राइट। तो हम इस तरह से इसको डिटेल में जो भी हमें जिस तरह से हमको चाहिए हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड, कस्टमाइज कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको इन दो चीजों को G और H कॉलम को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दिया तो पूरा डेटा जो एंटायर रोज में था वो सब पूरा डिलीट हो गया। GH कॉलम्स के सारी रोज ब्लैंक हो गई है, मैंने डिलीट कर दिया पूरा डेटा। मैं चाहती हूँ यहाँ पर मैं कुछ और इंसर्ट करूँ, हो सकता है मुझे स्टूडेंट्स की फोटो चाहिए और मैं यहाँ नहीं चाहती, मैं I कॉलम को डिलीट कर रही हूँ। फोटो मेरे पास है या नहीं है उसका स्टेटस मुझे डालना है कि विधि की मेरे पास फोटो है या नहीं। सो आई कैन पुट यस, मे बी मेरे पास इसकी नहीं है तो मैं इसका नो पुट कर सकती हूँ। ठीक है, या इस बच्चे ने मुझे कहा कि ही विल गिव टू मी बाय से 5th of September, तो मे बी आई कैन पुट इट विल बी अवेलेबल बाय 5th of September। We can do it that way. We can enter the data the way we want. We can edit the data the way we want. We can insert the columns. We can insert the rows also. जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर ये columns delete और insert करना सिखाया, उस तरह से if we will select these numbers जो है ये इस तरह से रोज हमें दिखा रहे हैं 14, 15, 16। Can you see the extreme left? A से इधर ये चीज जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, आप इस पर्टिकुलर चीज को अगर सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर कुछ एक और इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 8 और 9 के बीच में आपको कुछ नया डेटा इंसर्ट करना है, एक नई रो इंसर्ट करनी है, तो आपको 13 जिस भी रो के ऊपर आपको इंसर्ट करना है आपको वो सेलेक्ट करना होगा। आपने जैसे 13 सेलेक्ट किया, आपको चाहिए कि 12th पर एक और चीज आ जाए या 13th की जगह पे एक और चीज आ जाए, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे। ये मेरा एक और नया ब्लैंक क्रिएट हो गया। अब मुझे पूरा डेटाबेस को अगेन टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी है कि मुझे यहाँ पे इसकी जगह पे कुछ टाइप करना हो और फिर मैं ये पूरा डेटा नीचे करूं इस तरह से। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक रो इंसर्ट किया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी डाल सकती हूँ। यहाँ पे मैं सपोज ABC मैंने एक न्यू स्टूडेंट या ABS जो भी एक न्यू स्टूडेंट मैंने इंसर्ट किया और मैंने उसका एक रिकॉर्ड जो भी मुझे डालना है वो मैंने डाला, इंसर्ट किया यहाँ पे। सपोज CSE डिपार्टमेंट है या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, मैं पूरा कंप्यूटर साइंस नहीं लिखना चाहती हूँ, मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सेल अपने आप ही कई बार बहुत जो ऊपर हमने लिखा होता है वो चीजें वो पहले ही अपने आप ही ले लेता है कि अगर ऐसा सेम चीज जो हम कुछ टाइप कर रहे हैं और अगर वो ऑलरेडी हमारे पास इसमें इंसर्टेड है तो ये ऑलरेडी कॉपी करके हमको दे देता है, या फिर हम इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। मे बी मुझे कंप्यूटर साइंस पेस्ट करना है या मुझे अप्लाइड साइंस यहाँ पर डालना था। अब नाउ यू विल सी के 9 और 9 दो हो गए यहाँ पे, विच इज वेरी रॉन्ग। नाउ क्या मुझे ऐसा करना होगा कि मैं यहाँ पे 10 करूंगी, फिर 10 को 11 करूंगी, 11 को 12 करूंगी, ये मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगेन MS एक्सेल में हमारे पास ये चीज है। क्यों हम MS एक्सेल को यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये फ्रेंडली है, ये कस्टमर फ्रेंडली है, ये यूजर फ्रेंडली है। यूजर इसको अपने हिसाब से यूज कर सकता है जैसा उसको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब ये नंबरिंग ठीक करनी है कि अब ये 12-12 डबल आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये एज इट इज जैसा नंबरिंग है ये ठीक हो जाए, तो मैं इन दोनों 1 और 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पे आके यू कैन सी
दी जो कॉर्नर है 2 का, यहाँ पर ये जो साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया एक तरह से, कर्सर आप प्लीज मेरा देखिए जो है, और मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो ये पूरा ठीक हो जाएगा नीचे तक। ये अपने आप इसको काउंट 416 ले गया, यानी कि इसके अंदर 416 हमारे पास रोज हैं या जो डेटाबेस है वो इंसर्टेड है। हमें वो कैसे मिलेगा? हमें वो यहां से मिलेगा। आप देखिए मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है, काउंट 416 हमें दिख रहा है, तो यानी कि इसमें पर्टिकुलरली अभी 416 एंट्रीज हैं। उन 416 एंट्री, क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें, ये नंबर मैंने सेलेक्ट करा सपोज 1 से लेकर 13 तक, तो ये नंबर को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक्सेल में ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला है कि आपको उसका टोटल करके वो नीचे देगा, टोटल करके आपको वो नीचे देगा। सम देखिए आप 91 आ रहा है यहाँ पे, सम देखिए 91 आ रहा है। आप 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर 1 to 13 तक अगर ऐड करेंगे तो 91 आएगा। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली नीचे दिखा रहा है, आपने सिर्फ सेलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सपोज कुछ ऐसा डेटा लिखा, ये मैं लिख रही हूँ इस तरह से यहाँ पे। अब इसको कॉपी करने के लिए हमें टोटल करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप एक कैलकुलेटर से करेंगे, अगर आप मे बी मैनुअल करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। अब इसको मुझे टोटल करना है सिंपली, तो या तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूं, तो नीचे आप देखिए सम में आ रहा है 99185650, ये सी माई कर्सर हियर, ये इसका टोटल दिखा रहा है मुझे। मैं चाहती हूँ इस टोटल को ये मुझे नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर टोटल दिखा दे इसका। तो मैं कुछ भी नहीं करना, सिंपल सामने मेरा कर्सर देखिए कहाँ जा रहा है, ऑटो सम इज द फॉर्मूला which is there, auto sum। मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये मुझे नेक्स्ट कॉलम में इसका टोटल करके दिखा देगा। क्या किसी भी कॉलम में हमने मेंशन किया है, किसी भी बॉक्स में हमने क्या लिखा हुआ है, हम उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे दिखाएगा टॉप पे। FX के आगे जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, जहां पे मैंने ये सिलेक्ट किया है, ये यहाँ पे हमें दिखाएगा, यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पे ये लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर जगह पे ये लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ लिखा हुआ है, कोई फॉर्मूला इंसर्ट नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप वहां पर देखिए क्या आ रहा है, यहां पर देखिए क्या आ रहा है, यानी कि जो मैंने सिलेक्ट किया है K16 यहाँ पे आ रहा है, K16 यानी कि K फॉर कॉलम दिस एंड 16 इज द रो, यानी कि मैं इस पे अगर आती हूँ तो ये मुझे यहाँ पर मुझे एक्सेल में दिख रहा है 99185650 लिखा हुआ, बट एक्चुअली में क्योंकि इस पर्टिकुलर बॉक्स में एक कॉलम में, इस पर्टिकुलर कॉलम या बॉक्स जो भी हम कहेंगे, कॉलम एंड रो विच इज K16, इसमें एक फॉर्मूला इंसर्टेड है। तो वो क्या इंसर्टेड है, वो फॉर्मूला मुझे यहाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे वो फिगर नहीं दिख रहा है, जब आप इसके ऊपर कर्सर ले जा रहे हैं तो मुझे वहां पे इस बॉक्स में भी यही नंबर दिखना चाहिए, जो नंबर मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे फॉर्मूला दिख रहा है। तो अगर हम जाना चाहते हैं कि कहीं पर किसी ने कुछ फॉर्मूला लगाया है या मुझे ही अपने ईज के लिए मैंने फॉर्मूला पुट करा है, तो दिस इज नॉट द नंबर विच आई हैव टाइप्ड, बट दिस नंबर इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विच इज, अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि ये सम का फॉर्मूला है, और सम में कौन कौन से सारे रोज आ रहे हैं, ये जो सिलेक्टेड है, सिर्फ ये जो सिलेक्टेड दिखा रहे हैं ब्लू में। आप ये डबल क्लिक करके जब आप ये खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे करना है। हमारे पास मीटिंग ओवर होने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स ही हैं। किसी के पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे बताइए, अपना हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। और हम इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले, एक्सेल इज वेरी वेरी वास्ट सॉफ्टवेयर यू कैन से विच इज यूज्ड। जितना आप इसको लर्न कर लें उतना आपके लिए अच्छा है, यूजफुल है, आपका टाइम इज सेविंग है ये, और बहुत ही ट्रस्टवर्दी सॉफ्टवेयर है। रिमेंबर, whenever we are working on any Excel, Control S for सेव इज द शॉर्ट की, कि हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ यहाँ तक मैंने काम कर लिया है इस एक्सेल में, ये सारा कुछ सेव हो जाए, तो मुझे Control S प्रेस कर देना चाहिए। अभी ये बुक 1 फाइल है, ये मैंने कहीं सेव ही नहीं करी है, तो इसमें सेव नहीं होगा। जैसे ही मैं कुछ भी कहीं पर भी सेव का ऑप्शन इसको करती हूँ या Control S करूंगी, तो ये मुझसे फाइल लोकेशन पूछेगा कि मुझे कहाँ पे सेव करना है।
तो मैं इसको चाहती हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे इसको बुक 1 के नाम से या इफत के नाम से सेव करती हूँ, तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो गई है फाइल। अब इसमें मैं जो भी चेंज करूंगी, मैं XYZ कुछ भी यहाँ लिखती हूँ, मैं कुछ भी इसमें चेंज करती हूँ और Ctrl+S प्रेस कर देती हूँ, तो वो सब कुछ सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं इस फाइल को कभी भी यूज करूंगी क्लोज करने के बाद, कल परसों 15 दिन बाद या कभी भी, तो ये जो भी चेंजेस मैंने इसमें करे हैं वो सब इसमें सेव हो चुके होंगे और ये एज इट इज रहेंगे। तो अब आप देखिए ये वाला एक्सेल जिसपे हमने काफी सारे चेंजेस किए हैं, और ये हमारा है पुराना एक्सेल, ये हमारा एज इट इज है जिसको हम बेस समझ सकते हैं। ये एक्सेल हमारा सेम है जो हमारा इस नेम से था, मेरिट डेटा MDU के नाम से, और जो हमने अभी अपना एक्सेल नया बनाया जिसमें हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज करके एक रिपोर्ट नई जनरेट करी है, उसको हमने इफत के नाम से सेव किया और उसमें हमने जो भी चेंजेस करे हैं वो हमने यहाँ पर सेव हो गए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 416 टोटल स्टूडेंट्स कर दिए हैं, वहां पे हमारे पास एक स्टूडेंट कम है। ये देखिए यहाँ पे काउंट 415 ही है अभी पुरानी इसमें, तो यहाँ पर जो हमने न्यू एक्सेल में चेंजेस करे वो यहाँ पे नहीं अपडेट हुए हैं, बट इस एक्सेल में वो पर्टिकुलरली अगर आप चेक करेंगे तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स 416 हो चुके, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे ABC जो 9th नंबर पे है, 9th सीरियल नंबर पे, उसका डेटा हमने इंसर्ट किया। यस सोनिका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। बताइए बेटा। Ma'am, who is a founder of MX? माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बिल गेट्स है। बिल गेट्स इज द ओनर ऑफ द कंपनी बेसिकली, एंड he generally develops many software which are related or which are developed by the Microsoft or his company. So MS Office is also part of Microsoft, which is a very renowned organization in the entire world. And Windows ho ya different softwares, although now there are so many other competitors in the market also which develop the softwares, but when we are talking about MS Office, it is developed by Microsoft, which is now owned by Bill Gates. He has remained the #1 richest person of the world for several years. Now he is not the richest person for now currently, but he was for many years. I know we all, I hope we all know Bill Gates, who Bill Gates is. So this is how it is, and this is what it is. How these softwares are going to be developed in the market is depending upon their requirements. कि मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज की जरूरत होती है, उस जरूरत के बाद वो चीज को क्रिएट किया जाता है। तो सेम गोज विद सॉफ्टवेयर ऑल्सो। बहुत सारी कंपनीज जो काम कर रही हैं उनको लगता है कि हमें ये चीज इस तरह से क्रिएट करानी है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करवाती है अपने, और उसके अकॉर्डिंग उसको वेबसाइट पे क्या चीज दिखानी, जैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट है, उसको डेवलप करवाना, उसका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी जो सबको पता है, उसको मिला हुआ है। तो वो वेबसाइट वाज डेवलप्ड, नाउ इट इज मेंटेन्ड आल्सो बाय इन्फोसिस। किस तरह से क्या क्या चीजें उस वेबसाइट में रहेंगी, क्या क्या कॉलम्स, क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें रहनी चाहिए, वो सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट देके बता दिया। सो दैट वाज डेवलप्ड अगेन, दैट इज, सो दीज आर द सॉफ्टवेयर व्हिच आर बीइंग डेवलप्ड एज एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट इज अराइजिंग। तो MS ऑफिस बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, इसको हम टाइम टू टाइम वो अपडेट करते रहते हैं और न्यू ऑप्शंस इसमें इंसर्ट करते रहते हैं, बट MS ऑफिस इज नॉट अ न्यू सॉफ्टवेयर बेसिकली. It is a very old software. We are using it since decades now. So class is about to over. Thank you so much everyone for your time and everything. किसी के पास अगर कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए immediately. We have I think less than 30 seconds now. सत्यम प्लीज बोलिए फटाफट, बोलिए बेटा। हेलो। हाँ जी। हेलो।